السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ بل لوک سبھا میں ندائی ووٹ سے منظور، ایوان کا ٹیلی کاسٹ روک کر مرکز کی کارروائی۔ علیحدہ گورنرز اور علیحدہ ہائی کورٹس کے قیام کی ترمیمات مسترد، بل جمعرات کو راجیہ سبھا میں منظور ہونے کا امکان۔ ملک کی تاریخ کا سیاہ دن، جگن موہن ریڈی کا رد عمل، تلنگانہ حامیوں کا جشن۔ حیدرآباد کے لا اینڈ آرڈر کو گورنر کے تحت دیے جانے پر صدر مجلس کی برہمی، ندائی ووٹ کے طریقہ کار پر بھی شدید تنقید۔ مرکزی وزیر پورندریشوری کئی ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی عہدوں اور پارٹی سے مستعفی۔ چیف منسٹر نے اب تک استعفیٰ پیش نہیں کیا، چہارشنبے کے دن آئندہ کے لائحہ عمل کو قطعیت دینے کا فیصلہ۔ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو کی نریندر مودی سے اپیل۔ مغل پورے میں سالار ملت ہمہ مقصدی اسپورٹس اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد، 7 کروڑ روپے لاگتی اسٹیڈیم کی تعمیر۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں رات دیر گئے اچانک تقررات، تلنگانہ قائدین کی برہمی، صدر نشین کو جائزہ لینے سے روک دیا گیا۔ اور گولکنڈہ کے سرکاری دواخانے میں کلکٹر حیدرآباد اور ہیلتھ کمشنر کے ساتھ افسر خاں کا دورہ، بد نظمیوں کی نشاندہی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ بل لوک سبھا میں ندائی ووٹ کی مدد سے تیزی کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے۔ ایوان میں شدید شور و غل جاری تھا، جس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی کا لائیو ٹیلی کاسٹ روک دیا گیا۔ تلنگانہ بل کی ترامیم اور شق واری طور پر ووٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ حیدرآباد کو صرف تلنگانہ کا دارالحکومت بنائے جانے، 2 ریاستوں میں 2 گورنروں کا تقرر اور 2 ہائی کورٹ سے متعلق تمام ترامیم کو شکست ہو گئی۔ یہ سب کچھ ندائی ووٹ کے ذریعے کیا گیا۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے تلنگانہ بل مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ وسیع تر مشاورت کے بعد ہی تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا ہے اور سیما آندھرا کے عوام کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا اور انہیں پیکیج دیا جائے گا۔ قائد اپوزیشن سشما سوراج نے کہا کہ بی جے پی بل کی تائید کرتی ہے، لیکن سیما آندھرا کے عوام کے جذبات اور مسائل پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ ایوان کی کارروائی کے دوران ٹی ایم سی اور سی پی ایم کے ارکان نے بل کی مخالفت کے علاوہ راہل گاندھی اور نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ جنتا دل یونائیٹڈ اور ٹی ایم سی نے کارروائی کا احتجاجاً بائیکاٹ بھی کیا۔ شرد یادو کا کہنا تھا کہ وہ غیر دستوری طریقے کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اپوزیشن قائدین نے ایوان کی کارروائی روکے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایوان میں مباحث کے دوران معطل شدہ ارکان نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم انہیں مارشلز نے روک لیا۔ مباحث کے بعد جب سونیا گاندھی ایوان سے جا رہی تھی، اس وقت کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے ان کے پیر چھوئے۔ لوک سبھا میں جس تیزی کے ساتھ بل منظور کیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرکز جلد سے جلد اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چہارشنبے کو راجیہ سبھا میں بھی بل منظور کر لیا جائے گا، جمعرات کو صدر جمہوریہ کی منظوری حاصل کر لی جائے گی اور جمعرات تک دونوں ریاستوں کے الگ الگ چیف منسٹرز بھی منتخب کر لیے جائیں گے۔ لوک سبھا میں تلنگانہ بل کی منظوری پر تلنگانہ حامیوں کی جانب سے جشن منایا گیا۔ مختلف شعبہ جات سے وابستہ تلنگانہ ملازمین نے بھی بل کی منظوری پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے لوک سبھا میں تلنگانہ بل کی منظوری کی اطلاع عام ہوتے ہی جشن منانے کے لیے سڑکوں پر اتر آ گئے۔ ٹی آر ایس کے صدر دفتر تلنگانہ بھون میں پارٹی ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے سے بلغیر ہو کر مبارکباد دی۔ پارٹی کارکن
केसीआर की हिमायत पे नारेबाजी करते हुए रक्स करते नजर आए। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गईं। गन पार्क पर भी तेलंगाना हामियों ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों की यादगार पहुंचकर खिराज पेश किया। चादरघाट से तेलंगाना भवन तक फतेह रैली निकाली गई। खैरताबाद के बरखी दफ्तर पर भी मुलाजिमीन ने मिठाइयां तकसीम की। गांधी हॉस्पिटल में भी तेलंगाना मुलाजिमीन ने रक्स करते हुए तेलंगाना बिल की लोकसभा में मंजूरी का जश्न मनाया। तेलंगाना के दीगर अजला और शहर में कई मुकामात पर तेलंगाना बिल की मंजूरी पर तेलंगाना हामियों ने मसरत का इजहार किया है। बिल की मंजूरी के बाद सीएलपी में कांग्रेस कायदीन ने आपस में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 57 साला ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने वजीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना और भी तरक्की करेगी। सीमांध्र అన్నలకు తమ్ముళ్లకు మనవి చేస్తూ తప్పనిసరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా మీరు స్వేచ్ఛగా సంతోషంగా జీవించొచ్చు, సంపూర్ణ రక్షణ ఉంటుంది। रुकन असेंबली दामोदर रेड्डी ने कहा कि यह तेलंगाना के 4.5 करोड़ अवाम की जीत है और तलबा की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने सीमा आंध्रा अवाम को भी अपनी खुशियों में शामिल करने तेलंगाना अवाम से अपील की है। ఈరోజు మనం పండుగ జరుపుకుంటున్నాం, కానీ ఎవరు కూడా మనం రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను। సీమాంధ్ర ప్రజలు స్వచ్ఛంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో జీవనం సాగించవచ్చు, వారికి రక్షణ పూర్తి రక్షణ కూడా। गवर्नमेंट विप अनिल ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद सीमा आंध्रा कायदीन की मुखालिफत से ऐसे हालात पैदा हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के अलावा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद दी है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम तमाम ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह दिन दहाड़े जमहूरियत का खून किया जाता है। बिल्कुलिया तौर पर गैर जमहूरी तरीके से बिल मंजूर किया गया और सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात को कुचल दिया गया। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए तेलंगाना बिल को मंजूर किया गया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए तमाम रिवायात को नज़रअंदाज करते हुए सोनिया गांधी की हिदायत पर ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। उन्होंने पेशकियासी की कि इंतखाबात से पहले टीआरएस कांग्रेस में जम हो जाएगी। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि सीमा आंध्रा अवाम की तौहीन की गई है। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो इंतहाई तकलीफ दह है। उन्होंने कहा कि असम्बली में मुस्तरद करदा बिल को पहली बार पार्लियामेंट में मंजूर किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर के रवैये पर भी अफसोस का इजहार किया। इससे पहले सदर तेलुगुदेशम ने नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो रियासत को तकसीम न होने दें। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पर हुई कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक खानगी टीवी चैनल से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई के टेलीकास्ट को रोके जाने पर उन्हें बहुत हैरत हुई है। ना कोई इमरजेंसी है और ना कोई दाखिली खतरा, फिर किन बुनियादों पर कार्रवाई के टेलीकास्ट को रोका गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने भी चंद तरामीम पेश की थी लेकिन मौसर तरीके से कार्रवाई नहीं चलाई गई, जबकि इस अहम मसले पर जामे मुबाहिस होने चाहिए थे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के तहत ना करने के लिए तरमीम पेश की थी, जिसे निदाई वोट से मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था कि अगर इस तरह निदाई वोट का सहारा लिया गया तो कल अगर नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत बनेगी तो निदाई वोट के जरिए पोटा का अहिया भी अमल में आ सकता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए इख्तियार करदा तरीके से एक गलत मिसाल कायम हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर राज्यसभा में यह बिल इसी तरह मंजूर होता है तो मजलिस हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के तहत करने से मुताल्लिक़ शख नंबर 8 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। Historic bill was not debated but introduced and passed in a din
in the parliament for the creation of a separate state of Telangana. My party has been consistently saying that on Hyderabad there will be no compromise. With this bill, Hyderabad GHMC area, which is 620 square kilometers, that area would be under the governor. The law and order, life, liberty and property would be under the governor, which is unconstitutional. It is for the Telangana leaders to say and say very clearly that did they want this kind of Telangana wherein 600 students committed suicide, that you don't have a claim over Hyderabad law and order, and this clause 8 of the bill is unconstitutional. Law and order is a state subject. Article 246 Schedule 7 is very clear. Number one. Number two, what is the concept of common capital? Nowhere in the world India is common capital. Common governor. How can governor become super governor of two states? Thirdly, fourthly, distribution of assets, liabilities and debt. The bill says it will be done on the proportion of population. It is arbitrary. It is wrong. That debt liabilities should be done on the basis of projects that have been accrued in a particular region. That has not been taken care of. A glaring example of Hyderabad House in Delhi. Hyderabad House was the property of Nizam. Government of India took it. And in lieu of that Hyderabad House, the state of Hyderabad, which included the Marathi and the Kannada regions, AP Bhavan, that land was given to state of Hyderabad. Now that whole AP Bhavan will be given to Seema Andhra. I don't know. See, there are a lot of weaknesses in the bill. But definitely, as far as my party is concerned, we have opposed, have given so many amendments. We are opposing the giving of law and order to governor. And if this bill is carried forward in Rajya Sabha, definitely we will challenge this particular clause, not the bill, the clause of giving law and order to governor in the Supreme Court. And I am sure the Supreme Court will do justice. Thank you. My request to you, to all the people of our state, of Telangana region, of Rayalaseema region, of Coastal Andhra region, that we must ensure that peace is maintained at all cost. In one region, this is a very momentous and joyous occasion. For other occasion, there is a moment of sadness. But we have to ensure that peace is maintained at all cost, and our party will ensure that peace is maintained in Hyderabad. There will be no threat to people of Seema Andhra. We will stand with them and ensure that they stay here. They have been staying over here. We will stand with them. Thank you. I have nearly moved 19 amendments. You can get the copy from the Lok Sabha. I totally condemn it. And I hope that the speaker would tell the nation on whose advice that was done. Was there an external threat to the country? Was there an internal emergency? No such thing was there. This is people's house. The people have a right to know how we behave, what is happening. This is totally uncalled for. Thank you. अब भी बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का मानना है कि तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान के वस्त में कांग्रेस के अरकान ने ही शोरगुल किया और बिल को मंजूर करने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक भी रुकन ने ऐवान के वस्त में जाकर एहतजाज नहीं किया। सीमा आंध्रा के अवाम के मफादात को राज्यसभा में उठाया जाएगा और तरामीम भी पेश करते हुए सीमा आंध्रा अवाम के मफादात पर तवज्जो दिलाई जाएगी। तेलंगाना बिल लोकसभा में मंजूर हो जाने के बाद भी किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बारे में कोई इत्तला नहीं आई है। रियासत की तकसीम के फैसले पर इस्तीफा पेश करने की धमकी देने वाले वज़ीर आला ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तेलंगाना रियासत को मंजूरी मिलने के बाद कहा था कि अभी आखिरी गेंद बाकी है। फिर मरकज़ी काबीना में मंजूरी मिल गई तो असम्बली में करारदाद की बातें सामने आईं और पार्लियामेंट में बिल को शिकस्त देने का नाम लेकर इस्तीफे को मौखर किया गया। लोकसभा में बिल पेश हुआ तो मुबाहिस तक इंतज़ार करने की बात कही गई। अब जबकि लोकसभा में भी ये बिल मंजूर हो चुका है तो वज़ीर आला इस्तीफ़ा देने में किसी उजलत का मुजाहरा करना ज़रूरी नहीं समझते। क़यास किया जा रहा था कि बिल की मंजूरी के फ़ौरी बाद किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफ़ा आ जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चहारशंबे को वज़ीर आला मुस्तक़बिल के लाएअमल का ऐलान करेंगे। ग़ालिबन वो मंगल को मनहूस दिन समझते हैं। एक और बात ये भी कही जा रही है कि चूँकि ये राजभवन में बागबानी का दिन है और गवर्नर मसरूफ़ होते हैं, इसलिए एक दिन के लिए इस्तीफ़े का मामला टाल दिया गया है।
वज़ीर आला के एक बाएतमाद रफ़ीक पी सत्यनारायणा ने इस्तीफ़े के बारे में तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि चारशंबे को मीडिया से बातचीत के दौरान किरण कुमार रेड्डी अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला ने मंगल के दिन अपने आप को कैंप ऑफिस तक महदूद रखा, मगर पार्लियामेंट की कार्रवाई और इससे मुताल्लिक़ सरगर्मियों का जायज़ा लेते रहे। उनके हामी वज़रा ने कैंप ऑफिस पहुँचकर वज़ीर आला से मुलाकात की और इस मौजू पर तबादले ख्याल किया। दूसरी तरफ रियासत की तक़सीम के मामले पर पार्टी आला कमान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़रा पुरंदरेश्वरी पल्लम राजू और रियासती वज़रा जी श्रीनिवास राव, पार्था सारथी और ई प्रताप रेड्डी के अलावा 10 अरकान असम्बली ने ओहदों और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तेलंगाना बिल की मंजूरी से पहले ही जब लोकसभा की कार्रवाई जारी थी, कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली त्रिमूर्तुलु, ओंती श्रीनिवास और एल वेंकट रामैया ने भी कांग्रेस पार्टी और अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। पुरंदरेश्वरी ने अपना इस्तीफ़ा सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। इम्कान है कि उनके शौहर रुकन असम्बली डी वेंकटेश्वर राव भी असम्बली की रुकनीत और कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। सीमा आंध्रा के मजीद वज़रा और अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की भी क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने तो सियासत से सुबुकदोश हो जाने का ऐलान कर दिया है। रियासती वजीर डी माणिक्य वराप्रसाद ने कहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी सीमा आंध्रा अवाम को धोखा देने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि 1 साल पहले ही हाईकमान ने तेलंगाना को पैकेज देने का फैसला किया था, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए उस वक्त वजीर आला ने आला कमान के फैसले की मुखालिफत की थी। उनका कहना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के वक्त ही अगर इस्तीफे दे दिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। डी माणिक्य वराप्रसाद ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के झांसे में तेलुगुदेशम सरबराह और कांग्रेस के बास कायदीन भी आ गए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी इस झांसे में नहीं फंसे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आखिरी बॉल की बात कहते हुए सबको आखिरी वक्त तक धोखा दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला के 2 मंसूबे हो सकते हैं, एक इस्तीफ़ा देकर पार्टी छोड़ते हुए रूपोश हो जाना और फिर 2 साल के बाद वापस आकर कांग्रेस का रुकन बनना। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस्तीफ़े का ऐलान करना और वही 2 साल के बाद आकर फिर से कांग्रेस पार्टी का रुकन बनना। ये पूछे जाने पर कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़े का फ़ैसला टाला क्यों है, तो उन्होंने कहा कि शायद लगेज और बैगेज को तैयार करने का मसला हो सकता है। ఆయన ఆ ఢిల్లీలో తనకున్న ఆ పరిచయాలకు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఆ రోజు రాజీనామా చేయకుండా ఇప్పుడు 6 నెలలు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు రాజీనామా చేయబోతున్నాను అని ఏదో అంటున్నారు. మరి ఇంకా అది లేదు. నాకున్నంత వరకు ఆయన పార్టీ పెట్టకపోవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా ప్రెస్ మీట్। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि कई वज़रा वज़ीर आला का साथ छोड़ चुके हैं और दूसरों को भी चौकस हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पागल के बहकावे में आने से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना था कि किरण कुमार रेड्डी क्या कर रहे हैं उन्हें खुद इस बात का पता नहीं है। शंकर राव ने बताया कि 10 अजला में ज़िले और मंडल सतह पर जलसे मुनक़िद करते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुग़लपुरे में सालार मिल्लत हमा मकसदी स्पोर्ट्स स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। 7 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से इस स्टेडियम की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा कायद मजलिस ने 1 करोड़ रुपए की लागत से मीरालम मंडी ता वोल्टा होटल, सीवरेज लाइन और NP2 पाइपलाइन की तनसीब का भी संग बुनियाद रखा। MP फंड से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद सुल्तान शाही में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। कायद मजलिस ने बड़ा बाजार याकुतपुरे में भी एक वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर माजिद हुसैन, रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान के अलावा साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार अली, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुकर्रम अली, मोहसिन बलाला, सलीम बेग, मोहम्मद गौस और दूसरे मौजूद थे। कायद मजलिस का जगह जगह ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद दौरे के मौके पर मौजूद थी।
رکن اسمبلی افسر خان نے کلکٹر حیدرآباد ایم کے مینا اور ہیلتھ کمشنر کو گولکنڈے کے سرکاری دواخانے کا دورہ کروایا، جہاں انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور ناقص کارکردگی کی بے شمار شکایتیں تھیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ انہوں نے کچھ روز قبل یہاں کا دورہ کیا تھا اور بد نظمی کے بارے میں صدر مجلس کو واقف کروایا تھا، جس پر بیرسٹر اویسی نے ان کو ہدایت دی کہ ضلع کلکٹر اور ہیلتھ کمشنر کے ساتھ وہاں کا دورہ کیا جائے۔ رکن اسمبلی اور متعلقہ رکن بلدیہ جعفر حسین معراج اور مجلسی کارکنوں نے عہدیداروں کو دواخانے کا تفصیلی دورہ کرایا، جہاں کی سہولتوں اور نامناسب انتظامات دیکھ کر کلکٹر حیران رہ گئے۔ مجلس کی نمائندگی پر جنریٹر لگوایا گیا، لیکن اس میں ڈیزل نہیں تھا۔ ایمبولینس تھی جس کا ڈرائیور نہیں تھا۔ ناکارہ بستروں کو سفید چادروں سے ڈھانپ کر کلکٹر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مجلسی کارکنوں نے تمام پول کھول دی۔ کلکٹر نے دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ سے وضاحت طلب کی اور رکن اسمبلی کو تیقن دیا کہ وہ نہ صرف اس معاملے میں سخت کارروائی کریں گے بلکہ دواخانے کے لیے خصوصی بجٹ فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے پیر کی رات دیر گئے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں اچانک غیر معمولی تقررات کر دیے۔ 9 تقرر کردہ افراد میں سے بیشتر کا تعلق سیما آندھرا سے ہے۔ پیر کی رات وزیر اعلیٰ نے احکام جاری کرتے ہوئے محمد ہدایت کو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کا نیا صدر نشین مقرر کر دیا، لیکن جب وہ صبح 8 بجے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے لیے دفتر پہنچے تو انہیں کانگریس کے تلنگانہ قائدین کی شدید برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ عہدے کا جائزہ لینے کے لیے کافی دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ شام 4 بجے جب وہ کارپوریشن کے دفتر پہنچے تو وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ برہم تلنگانہ قائدین نے دفتر میں موجود کرن کمار ریڈی کی تصویر اٹھا کر پھینک دی اور ان کے پوسٹرز بھی پھاڑ دیے۔ محمد ہدایت کا تعلق گنٹور سے بتایا جاتا ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد وراثت رسول خان نے وجے نگر کالونی میں واقع GHMC اسپورٹس کمپلیکس میں سوئمنگ پول کا افتتاح کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ محسنہ پروین اور GHMC اسپورٹس ڈائریکٹر پریم راج بھی اس موقع پر موجود تھے۔ احمد نگر کے رکن بلدیہ اور میئر ماجد حسین نے احمد نگر کمیونٹی ہال میں ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا، جسے مقامی مجلس کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ عوام کی کثیر تعداد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مینارٹیز عثمانیہ یونیورسٹی اور محکمہ اقلیتی بہبود کے اشتراک سے اقلیتی طلباء کے لیے UPSC سول سروسز امتحانات 2014 کے لیے مفت کوچنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ محمد اقبال اور MFC کے اسپیشل آفیسر SA شکور نے بتایا کہ اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے 100 امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا اور انہیں مفت کوچنگ دی جائے گی۔ مسلمان، عیسائی، سکھ، بدھسٹ، پارسی اور جین طبقے کے امیدوار اس کے اہل ہوں گے۔ امیدواروں کا تعلق آندھرا پردیش سے ہونا چاہیے اور گریجویٹ ہونا ضروری ہے۔ امیدوار کے سرپرست کی سالانہ آمدنی بھی 1 لاکھ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کے لیے 33% تحفظات دیے جائیں گے، جبکہ معذورین کے لیے 3% تحفظات مختص کیے گئے ہیں۔ امیدواروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے نام 25 فروری تک درج کرا لیں۔ حیدرآباد میں نظام کالج پر CEDM کے دفتر پر ناموں کا اندراج کیا جا سکتا ہے۔ امیدواروں کو درخواست کے ساتھ ڈگری کا میمو بھی منسلک کرنا ہوگا۔ اسکریننگ ٹیسٹ 2 مارچ کو صبح 11 تا دوپہر 1 بجے منعقد ہوگا۔ اقلیتی طلباء سے اس اسکیم سے استفادہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواستیں ویب سائٹ www.cedmou.ap.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ لوک سبھا میں تلنگانہ بل کی منظوری کے بعد AP NGOز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ AP NGOز کے صدر اشوک بابو نے کہا کہ 4 شنبے کو ہڑتال ختم کر دی جائے گی۔ 20 فروری سے ملازمین اپنی خدمات پر رجوع ہو جائیں گے۔ تلگو دیشم کے رکن کونسل سمتا نے کہا کہ میرا کماری نے خواتین کا سر جھکا دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابو جگجیون رام کی بیٹی ہوتے ہوئے دستور اور جمہوریت کا خون کیا گیا۔ جس بل کو اسمبلی میں مسترد کر دیا گیا تھا اس کو پارلیمنٹ میں منظور کرانے کے لیے تعاون کیا گیا۔
तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी मुद्दु कृष्णा नायडू ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि मीरा कुमार ने पार्लियामेंट पर धब्बा लगा दिया है। तमाम कवायद और रिवायतों को तोड़ दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मुद्दु कृष्णा नायडू ने बताया कि सदर जमहूरिया ने भी रबर स्टैम्प की तरह अपनी खिदमत अंजाम दी है। राष्ट्रपति भवन को AICC भवन में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी की आंखों के सामने ये सब कुछ तमाशा होता रहा, लेकिन बीजेपी ने इसकी ना मजम्मत की, ना इसमें कोई रुकावट पैदा की। क्या मुस्तकबिल में भी बीजेपी इसी तरह के इक़दामात करेगी? महकमे आसार खदीमा की जानिब से प्रिवेंटिव कंजर्वेशन मैन्युस्क्रिप्ट्स के उन्वान से 5 रोज़ा सेमिनार का आगाज़ हुआ, जिसमें प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में साबिक़ प्रोफेसर V किशन राव, प्रोफेसर A सत्यनारायणा, महकमे आसार खदीमा की डायरेक्टर डॉक्टर ज़रीना परवीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। डॉक्टर ज़रीना परवीन ने अपने खिताब में कहा कि महकमे आसार खदीमा में ख़त्ताती के 638 नादिर नमूने मौजूद हैं, जो फ़ारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और मराठी ज़बानों में हैं। और आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना बिल लोकसभा में निदाई वोट से मंजूर, ऐवान का टेलीकास्ट रोककर मरकज की कार्रवाई। अलहदा गवर्नर्स और अलहदा हाईकोर्ट्स के क़ियाम की तरमीमात मुस्तरद, बिल जुमेरात को राज्यसभा में मंजूर होने का इम्कान। मुल्क की तारीख का सियाह दिन, जगन मोहन रेड्डी का रद्द अमल, तेलंगाना हामियों का जश्न। हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के तहत दिए जाने पर सदर मजलिस की बरहमी, निदाई वोट के तरीक़ेकार पर भी शदीद तनकीद। मरकजी वजीर पुरंदरेश्वरी कई रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ओहदों और पार्टी से मुस्तफ़ी। चीफ मिनिस्टर ने अब तक इस्तीफा पेश नहीं किया, चारशंबे के दिन आइंदा के लाहे अमल को क़तइयत देने का फैसला। रियासत को मुत्तहद रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी से अपील। मोगलपुरे में सालार मिल्लत हमा मकसदी स्पोर्ट्स स्टेडियम का संग बुनियाद, 7 करोड़ रुपए लागती स्टेडियम की तामीर। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में रात देर गए अचानक तखर्रुरात, तेलंगाना कायदीन की बरहमी, सदर नशीन को जायजा लेने से रोक दिया गया। और गोलकुंडा के सरकारी दवाखाने में कलेक्टर हैदराबाद और हेल्थ कमिश्नर के साथ अफसर खां का दौरा, बदनज़मियों की निशानदेही। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह।